Welcome once again. It is your chapter number 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. A few moments later, we all gifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. O means surprised Herani. Array means an impressive display. Precision means accuracy. There was a spectacular show of South African jets and troop carriers over the Union buildings. The highest generals of the military and police saluted the President Mandela. It was a clear demonstration of the military's loyalty to democracy, to a free and fairly elected गवर्नमेंट। थोड़ी देर बाद आकाश में साउथ अफ्रीका के जेट्स और हेलीकॉप्टर्स उड़ने लगे और वो वहाँ की नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सैल्यूट कर रहे थे। सभी लोग उस नज़ारे को देखकर बहुत खुश थे। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका की जो मिलिट्री थी वो साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक्नॉलेज कर रही थी, सैल्यूट कर रही थी। Nelson Mandela remembers how the generals of the South African army and the high police officers were employed to arrest him and the other leaders of the blacks only some time ago. Now the same officers bedecked with ribbons and medals were saluting him and showing their loyalty towards him. The end of the apartheid regime has brought all these changes in them. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स और पुलिस फोर्स के जितने भी हेड्स थे और उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर मेडल्स और रिबन्स लगे हुए थे, उन सब ने मंडेला को सैल्यूट किया और प्रॉमिस किया कि वो लॉयल रहेंगे। कुछ साल पहले वो नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर लेते क्योंकि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron means a zigzag pattern of shape of V. अलग अलग कलर्स का धुआं छोड़ते हुए जेट्स एंड एरोप्लेन्स हवा में दिखाई दे रहे थे जो कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर का धुआं छोड़ रहे थे। द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका consists of two major constituents, the blacks and whites. It was thought necessary to show respect to the sentiments of both these communities. On the historic day of the inauguration ceremony of the Republic of South Africa, two national anthems were played. The whites sang Kosi Sikili E Africa and the blacks sang Die Stand. जैसा कि हर कंट्री में जब भी कोई नेशनल फंक्शन होता है तो वहाँ का नेशनल एंथम गाया जाता है, इसी तरह साउथ अफ्रीका में भी वाइट कलर और ब्लैक कलर के लोगों का नेशनल एंथम प्ले किया गया। नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। वाइट और ब्लैक्स अपना ही नहीं दूसरों का भी नेशनल एंथम गा रहे थे, चाहे उन्हें उसका मतलब नहीं पता था, लेकिन अब किसी में कोई फर्क नहीं था, इसलिए वो दूसरों के नेशनल एंथम को भी सीख सकते थे। साउथ अफ्रीका हैड अचीव्ड अ ग्रेट अचीवमेंट एंड नेल्सन मंडेलाज हार्ट वाज आल्सो फिल्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। उन्हें अपनी कंट्री की पूरी हिस्ट्री याद आ रही थी कि किन कठिनाइयों का साउथ अफ्रीका ने सामना किया है। फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, इट मीन्स 1900 की शुरुआत में। At that time, there was a Anglo-Boer War. It means war between English and African. And after this war, apartheid political system was started in South Africa. After the Boer War, the white people of South Africa patched up their differences. They set up a system of racial domination against the black people of their own race. इसी वॉर के बाद साउथ अफ्रीका में अपार्थीड पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत हुई क्योंकि वाइट कलर की स्किन के लोगों ने डार्क स्किन लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन शुरू की, उन पर डोमिनेशन शुरू किया। मंडेला सेज, however, things completely changed with the end of the apartheid regime and inauguration of the Republic government led by Nelson Mandela. In the new setup, all enjoyed justice, peace, equality and human dignity. सभी ने न्यू गवर्नमेंट के आने पर सभी ने उसका स्वागत किया और सभी ने एंजॉय किया जस्टिस को, पीस को, इक्वालिटी को और ह्यूमन डिग्निटी को। सभी बहुत खुश थे। पैट्रियोट मीन्स पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, फाइट्स फॉर हिज कंट्री। Nelson Mandela gratefully acknowledges the sacrifices of thousands of his people who fought against the apartheid regime.
Their suffering and courage can never be forgotten or repaid. Mandela humbly believes that he was simply the sum of all those African patriots who had gone before him. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत दुख झेले, बहुत हिम्मत रखी ताकि साउथ अफ्रीका आज यह दिन देख सके। नेल्सन मंडेला को बहुत ही दुख है कि वो सभी लोग जिन्होंने इस दिन के लिए मेहनत की थी आज वो मौजूद नहीं हैं। शायद उन सभी लोगों की डेथ हो चुकी। प्रोफाउंड मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी डीप एंड स्ट्रॉन्ग। नो डाउट द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड created a deep and lasting wound in South Africa and the blacks. It would take many years to recover from that profound hurt. मंडेला कहते हैं कि उनके देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही डीपली हर्ट हुए थे अपार्थीड नाम की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। उनके घाव इतने गहरे हैं कि उन्हें भरने में बहुत साल लग जाएंगे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड unleashed a reign of terror and oppression on the black people. But they could not break their resolution and determination. The deep oppression produced patriots of extraordinary courage, wisdom, and generosity. It produced thousands of Thambus, Sicilus, Sadus, Fishers, and Sobuquis of their time. अपार्थीड के ड्यूरेशन में इतने महान लोगों को हमने देखा जो अपने देश से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, जिन्होंने इतना ज़्यादा करेज रखा, विजडम रखी और जिनरोसिटी रखी। ऐसे लोग शायद दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। एज यू नो साउथ अफ्रीका इज़ फेमस फॉर रो डायमंड्स बट मिनरल्स एंड जेम्स आर नॉट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। मंडेला थिंक्स दैट द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स पीपल। दे आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। मंडेला कहते हैं कि उनके देश में इतने सारे जेम्स हैं, इतने सारे डायमंड्स हैं जो धरती के नीचे गड़े हुए हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के असली जेम्स, असली हीरे तो हैं वो वहाँ के लोग हैं जो इन हीरो से भी ज़्यादा, इन पत्थरों से भी ज़्यादा कीमती हैं। यानी कि मंडेला वहाँ के लोगों को हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती मानते हैं। Comrades means friends. Nelson Mandela learned the meaning of courage from great patriots and comrades in the struggle. They risked their lives and stood up to attack and tortures of the apartheid regime. अपने साथियों से ही मंडेला ने करेज का वास्तविक अर्थ समझा। उन्होंने देखा कि किसी आइडिया को साकार करने के लिए लोग इतना ज़्यादा उसमें डूब जाते हैं, इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि वो उसे पूरा करने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। He learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who doesn't feel afraid, but he who conquers that fear. मंडेला कहते हैं कि साहस का मतलब यह नहीं है कि आप किसी से डरते नहीं हैं। साहस का वास्तविक अर्थ है अपने डर पर विजय प्राप्त करना, तभी आप ब्रेव बन सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि यदि वो कुछ करने की ठान ले तो वो पूरा कर सकते हैं। तभी तो इन लोगों में इतना करेज था, इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने अपार्थीड को ख़त्म करने का ठाना तो उसे पूरा करके ही दिखाया।